Welcome to Dolphin PG Institute of Biomedical and Natural Sciences, Manduvara, Dehradun. I am Dr. Varsha Parcha, Professor, Department of Chemistry and Pharmaceutical Chemistry, DIBNS, Dehradun. I am taking your module on spectroscopy under the paper Spectroscopy and Solid State for MSc Chemistry 3rd semester, HNBGU, University, Srinagar, Garhwal. I have started with this module and given a basic introduction about the spectroscopy, a little bit basic principle behind your ultraviolet spectroscopy, where we discussed in my previous modules that UV radiation extends from 10 nanometers to 400 nanometer and the visible radiation extends from 400 nanometer to 800 nanometer. And we call 200 to 400 nanometer as a near UV region and below 200 nanometer, which is not of the much importance, as I have discussed in my previous module, since oxygen also gets oxygen also absorbs in the same very range, and therefore you have to flush it out, and we call it as a vacuum ultraviolet spectroscopy also. Generally we make use of a common solvents, ethyl alcohol and hexane, etc. But yes, we can take out in any organic solvent we can take it. We already discussed this. Now what happens to the molecule when this transition takes place, then excitement takes place when a photon of light is irradiated on a molecule or a atom. What happens to the molecule? In fact, I in my previous lecture told you that in one line, if you have to state what is ultraviolet spectroscopy, so you will say electronic excitations. So that means there is a change in energy level, change in electrons position from one state to another. So they may be in the ground state, they are in the ground state, and when they absorb the energy, they get excited to the higher excited state. They are another energy level, and then they come back, and within that period they have to use that one photon of light. They will emit it, irradiate it, transfer it, transmit it. So many things are going to happen when after excitement is there. So what happens is electronic transitions. Electron goes from ground state to excited state. So now I'll be talking about electronic transitions. Wait a minute. We have already discussed these things. So before we do, yes. The possible electronic transitions which are possible in ultraviolet spectroscopy is as shown in the diagram, but you will not be able to understand it. So you know, we have sigma bond, we have pi bond, we have non-bonding electrons. क्या है हमारे पास? एक सिग्मा बॉन्ड होता है जब आपस में एटम ओवरलैप करता है तो थ्रू सिग्मा बॉन्ड करता है या थ्रू पाई बॉन्ड करता है. सिग्मा बॉन्ड इज स्फेरिकल इन शेप and they overlap like this, and pi bond is a dumbbell shaped, they overlap sidewise, and that's a pi bond formation, and then sigma. But say for example oxygen, say for example nitrogen, we have such elements also which have got a lone pair of electron which does not occupy neither sigma nor pi. So then what are those electrons? They are termed as non-bonding. उनको हम बोलते हैं non-bonding electron. अब जो सिग्मा और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ, वो सिग्मा उनका एक जो ग्राउंड स्टेट है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड स्टेट में है, उनको हम बोलेंगे ये सिग्मा उनका है. लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं, उनकी एनर्जी लेस होती है, हम बोलते हैं यहाँ पर ये रिजाइड करते हैं, हम इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स. और इनका जो दूसरा एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इस आप पहले भी पढ़ चुके हो. एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. तो एंटी बॉन्डिंग में हायर एनर्जी, जब एनर्जी ज्यादा आएगी तब हम हायर एनर्जी, आप इसको ऐसे समझिए, एक ग्राउंड स्टेट है और एक ग्राउंड फ्लोर है और एक अपर फ्लोर है, टॉप फ्लोर है. ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर आने के लिए हमें क्या चाहिए? यस, हमें एनर्जी चाहिए. हम एनर्जी होगी तब हम चढ़ के, हम जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे. लेकिन जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एक्साइटमेंट नहीं आएगी. मेरे पास उतना ही ताकत है
खाना खा के मेरे पास उतनी ही ताकत है कि मैं नीचे वाले फ्लोर में रह सकता हूँ, मैंने बूस्ट पी लिया, मैंने एनर्जी ड्रिंक्स पी ली एंड आई एम नाउ फीलिंग सो मच एनर्जेटिक, तो मैं जंप कर सकती हूँ हायर फ्लोर के लिए। मेरे पास नीचे का फ्लोर भी है रहने के लिए और ऊपर का फ्लोर भी है रहने के लिए। तो हर किसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास दो लेवल्स है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है जब भी बॉन्डिंग होगी एनर्जी हमेशा लो होगी और वो उसमें पेयर फॉर्म में रहते हैं, एक का डायरेक्शन ऐसे एक का डायरेक्शन ये, तो पेयर फॉर्म में दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास एक बॉन्ड हो गया सिग्मा, दूसरा बॉन्ड हो गया हमारे पास पाई। पाई में साइडवेज ओवरलैप, सिग्मा में स्फेरिकल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप नहीं होती उसमें। तो सिग्मा का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार, पाई का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम बोलेंगे पाई स्टार। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पाई की कि पाई स्टार की? पाई स्टार की। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा की सिग्मा स्टार की? सिग्मा स्टार की। सिग्मा उसका ग्राउंड स्टेट है और सिग्मा स्टार उसका यस एक्साइटेड स्टेट है। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो है सिग्मा और फिर पाई। तो पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। वेरी फाइन। लेकिन जो मैंने आपको बताया वी हैव नॉन बॉन्डिंग ऑल्सो, लेकिन नॉन बॉन्डिंग का बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता, बट उसके पास एक चांस है कि मेरे पास दो घर है, मेरे अपना तो कोई घर नहीं है, लेकिन मेरे पे जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो दो है, या तो सिग्मा स्टार है और या पाई स्टार है। तो मैं अपना जंप कर सकता हूँ सिग्मा स्टार पे भी और पाई स्टार पे भी। तो हमारे पास तीन और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेवल्स हो गई, एक हो गई सिग्मा, दूसरा हो गया पाई, तीसरा हो गया नॉन बॉन्डिंग जिसका कि कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है। एक घर का जो हिस्सा है जिसमें उसको लोकेट करना है इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कहाँ पॉसिबिलिटी होती है उसको फाइंड करने की, उसकी ऑर्बिटल में। वो ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग का तो है ही नहीं, उसके पास नहीं है, और अगर है नहीं तो उसका तो एंटी बॉन्डिंग भी नहीं होगा। लेकिन वो एंटी बॉन्डिंग कहाँ कर सकता है, सिग्मा स्टार में कर सकता है या पाई स्टार में कर सकता है। अब अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, आप स्फेरिकल है, जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा, जैसे एस, जितने भी एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस शेल वाले हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और पाई बॉन्ड बनाते हैं जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो साइडवेज ओवरलैप करते हैं। तो सिग्मा जो जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड्स मिलेंगे दे आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा एंड वन मोर बॉन्ड इज देयर साइडवेज ओवरलैप करके, उसको हम पाई बॉन्ड की जो एनर्जी है वो सिग्मा से कम है, सिग्मा की ज्यादा है फिर पाई की है। और नॉन बॉन्डिंग के पास तो कोई वो ही नहीं है, ऑर्बिटल ही नहीं है, वो तो और ही लूजली बाउंड है। जितना इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा, उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए होगी। जितना वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतना वो इजीली जा सकता है। तो सिग्मा तो बहुत ही न्यूक्लियस के पास है, पाई उससे थोड़ा दूर, और नॉन बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लूजली हेल्ड है, उनके पास तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, और दे कैन जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इफ यू लुक एट दिस, ये हमारे पास है सिग्मा और ये है इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ये है हमारे पास पाई, ये है हमारा इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ये है हमारा नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है। तो अब व्हेन यू इरेडिएट मॉलिक्यूल विद अल्ट्रावायलेट लाइट, तो हुआ क्या, उसके अगर सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी एक्साइट हो गए, उनको एनर्जी मिल गई, अब वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जंप कर सकते हैं। उसको इतनी एनर्जी आई, उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आई कैन जंप इनटू सिग्मा स्टार। अब ये जो पाई वाला था उसको भी एनर्जी सप्लाई की है आपने, उतनी एनर्जी की, और पाई वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन को, तो अब आप ध्यान से देखना इसको, पाई को पाई स्टार में जाना है, ये सिग्मा है और सिग्मा स्टार है, आपने एनर्जी इतनी सप्लाई की। तो अगर जब सिग्मा स्टार में आपको ज्यादा ताकत कहाँ चाहिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने में, पाई से पाई स्टार जाने में तो बहुत कम एनर्जी चाहिए, लेकिन आपने एनर्जी तो सप्लाई की जितनी अपने सिग्मा को की। जब सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होगा तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम उसको चाहिए। ऐसे ही हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है एन। तो एन के पास मैंने बताया आपको अपना तो कोई ऑर्बिटल नहीं है ना, उसके पास कोई एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन एन जो है वो सिग्मा स्टार में भी जंप कर सकता है और एन जो है वो पाई स्टार में भी जंप कर सकता है। ये देखो ये एन है, ये एन था ना हमारा, ये एन है, ये हमारा पाई स्टार है, ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई स्टार है, ठीक है, ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा स्टार है। तो हमारे पास बहुत तरह की ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। सबसे पहले हम यहां से समझते हैं,
सिग्मा से सिग्मा स्टार, हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की कि सिग्मा से जंप करके इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार चला गया। लेकिन उससे पहले ही ज्यादा ताकत चाहिए उसको सिग्मा स्टार तक जाने की, लेकिन हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की है, उससे पहले ही उसको एक और घर मिल गया, पाई स्टार। उसने बोला इसमें तो कम एनर्जी चाहिए, मेरे पास तो एनर्जी बची जाएगी, मैं सिग्मा से पाई स्टार में भी जंप कर सकता हूँ। ठीक हो गई बात। लेकिन फिर हमने आ गए हम पाई पे, हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की कि पाई से पाई स्टार तक ट्रांजिशन हो जाए, ये बहुत इजीली। इसने थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब की और जंप कर दिया। यहाँ हमें बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी है, यहाँ उससे थोड़ी कम, यहाँ उससे भी कम, तो क्या हुआ, पाई से पाई स्टार पे ये जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये इनके सारे ग्राउंड स्टेट है, ये सिग्मा का ग्राउंड स्टेट है, ये पाई का ग्राउंड स्टेट है, ये एन का है। अब एन के पास तो दो कंडीशंस आ गई भाई, मैं एन से सिग्मा स्टार में भी जा सकता हूं, मैं एन से पाई स्टार में। तो ये तो सिग्मा स्टार था, ये एन था, इसने जंप करके सिग्मा स्टार में चला गया। यहाँ क्या है, एन से जंप करके पाई स्टार में चला गया। ठीक है, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, ओके, और सिग्मा से पाई स्टार। दूसरा, हमारे पास पाई है, हमने जब एनर्जी सप्लाई की, मैंने कहा इतनी एनर्जी सप्लाई की कि पाई से पाई स्टार हुआ, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है तो पाई से सिग्मा स्टार भी जा सकती है। तो टोटल मिलके आप देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, पाई से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। सबसे आसान आपकी नजर में कौन सी ट्रांजिशन होनी चाहिए, जिसमें जितनी कम एनर्जी लगेगी उतनी वो ट्रांजिशन इजीली पॉसिबल है। तो सबसे कम एनर्जी अगर आप देखो, सबसे बड़ी लाइन यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, और सबसे कम पाई एन से पाई स्टार। तो सबसे कम एनर्जी कौन सी एक्साइटेशंस करेगा, एन से पाई स्टार, उससे कम पाई से पाई स्टार, उससे कम एन से सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा से पाई स्टार, देन सिग्मा पाई से सिग्मा स्टार, देन सिग्मा से पाई स्टार, एंड देन सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए हमें, सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, लेकिन जितनी ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ट्रांजिशन इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो जो फिसाइल ट्रांजिशन होती है वो कौन सी है, 4 ट्रांजिशंस ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वो है हमारे पास जो सबसे ज्यादा फिसाइल है, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये जो बहुत फिसाइल है, और एन से सिग्मा स्टार। 4 ट्रांजिशन जो है पूरी इजीली हमें मिल जाती है, एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये सिग्मा से पाई स्टार और पाई से सिग्मा स्टार, ये ट्रांजिशन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, नहीं मिलती। इनमें भी जो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन इजीली पॉसिबल है वो है एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार। सिग्मा सिग्मा स्टार के लिए बहुत हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और ये ज्यादातर किस एरिया में हो जाती है, वैक्यूम रीजन में, यूवी रीजन के वैक्यूम रीजन में ये एब्जॉर्ब हो जाती करती है। ठीक है, सो ट्रांजिशन जो पॉसिबल हैं, जो मैं फिर से बता रही हूँ, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार एंड पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन from orbital is excited to corresponding nd orbital sigma star. Energy required is a large for this transition. For example, किन केसेस में होगा, मीथेन, मीथेन में CH बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, तो इसमें जो पॉसिबल है सिग्मा से सिग्मा स्टार। और देखो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एब्जॉर्बेंस 125 नैनोमीटर, और मैंने क्या बताया आपको, 200 से 400 हमारा नियर यूवी रीजन है, ये उससे थोड़ा कम। ठीक है, मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। Pi electron is a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding pi star. Compounds containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyls, nitriles, aromatic compounds, etc. undergo pi star transition. For example, alkene generally absorbs in the region 170 to 204 nanometers. Saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons, say oxygen, nitrogen, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनके पास कैपेबल है कि ये ट्रांजिशन शो कर सके, कौन सी, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। These transition usually require less energy than sigma sigma star transition. The number of organic functional groups which show this n sigma star peaks in UV region is small, means इसका region 150 से 200 नैनोमीटर के बीच में आता है।
Fifth is sigma to pi star and pi to sigma star. These electronic transition are forbidden transition, are not they are only theoretical possible, as I told you. Thus, n to pi to pi star electronic transitions show absorptions in the region above 200 nanometers, which is accessible to UV spectrophotometer. The UV spectrum is of only a few broad absorptions. मतलब इतनी सारी transitions में से कौन सी सबसे अच्छे से हो जाती है? n pi star और pi pi star. आपने देखा सिग्मा से सिग्मा स्टार भी हमने नीचे पीछे देखा, देखो 125 नैनोमीटर. फिर आपने देखा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, बट एन टू सिग्मा स्टार भी आप देख रहे हो 150 और 250 के बीच में. तो बचा क्या हमारे पास? पाई से पाई स्टार और एन से पाई. और ये दोनों ट्रांजिशंस तो थियोरेटिकली पॉसिबल है और ये वाली है ही नहीं. तो अभी आज मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई कि क्या हो गया, मॉलिक्यूल को मैंने रेडिएट किया. किससे रेडिएट किया? अल्ट्रावायलेट लाइट से रेडिएट किया. अब मॉलिक्यूल में क्या चेंज आई? उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो ग्राउंड स्टेट से थे वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए. उन्होंने फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया और एक्साइट होके चले गए. लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ये हमने स्टडी किया कि हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. तो सिग्मा से सिग्मा स्टार जा सकता है, पाई से पाई स्टार जा सकता है. और ये जो नॉन बॉन्डिंग है उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और पाई स्टार में भी जा सकता है. इन बिटवीन हमारे पास सिग्मा से पाई स्टार या पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है थियोरेटिकली, लेकिन ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं. और जो हमारा ये सिग्मा से सिग्मा स्टार है इसमें बहुत एनर्जी चाहिए, 125 नैनोमीटर्स वेवलेंथ है. यू नो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी. जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी कम. तो ये 125 नैनोमीटर पे आ रही है, इसमें बहुत एनर्जी चाहिए. और पाई पाई स्टार में बहुत कम, एन पाई स्टार में उससे भी कम. और जो पीछे बचा एन सिग्मा स्टार उसकी स्लाइटली है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, सिग्मा सिग्मा स्टार से कम है. लेकिन जो फिसाइल ट्रांजिशंस हैं वो क्या है? एन पाई स्टार है, पाई पाई स्टार. हम यहाँ ये फिनिश करेंगे. हम इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे. कुछ टर्म्स हैं, कौन कौन से बैंड्स बनते हैं इसमें, कौन से टर्म्स का इस्तेमाल करना है, किन ग्रुप्स को हम जो एक्साइटेशन शो करेंगे उनको क्या बोलते हैं. सो दैट विल बी टेकिंग अवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टडी. हैव ए गुड डे.